Yeah. And we are live. Hi everyone, this is Nitin. I'm back again with another episode of Masters of Sales. And today I have Rahul Nanilu with me. नलिल मतलब है वो भी हम अभी समझेंगे. उसके पीछे एक स्टोरी है, obviously राहुल हमें बताएंगे. But before we, go ahead and talk about this particular podcast and LinkedIn live session, पता ही है आपको मैं क्या पूछने वाला हूँ और क्या बोलने वाला हूँ. अभी मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है. इस पे बहुत जोक्स बन चुके हैं, मुझे पता है, मुझे काफी लोग डीएम में भेजते हैं. बट अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और हम लोग दिख रहे हैं तो प्लीज बता दीजिए. दैट वुड बी अमेजिंग. We'll wait for a few seconds, a minute or so, and then we will begin our conversation round. Sure. एक्चुअली बहुत लोगों ने बोला है वैसे, बाय द वे. खासकर जो मेरे दोस्त होते हैं ना, वो तो मुझे अलग से ही वो टांग खींचते हैं कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. यही करते रहते हैं सारा दिन. These kind of ads or kind of mediums, you have to keep checking. Even there is some same issue which okay. So I या hope I am हल्का audible सा now. इंटरनेट. या यू आर Hmm. ऑडिबल नाउ, बट आपका वीडियो थोड़ा सा लैग हो रहा है. Okay, one sec. थैंक थैंक यू सिमरन, थैंक्स फॉर टेलिंग दैट आपको आवाज आ रही है. ग्रेट. थैंक्स अ लॉट गाइस. तो अभी हम मतलब कुछ सेकंड्स में ही स्टार्ट करने वाले हैं ये नया एपिसोड ऑफ मास्टर्स ऑफ सेल्स. एंड जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टुडे आई हैव विद मी राहुल ननिलू, हु इज द नेशनल हेड ऑफ फॉर ए वेरी लार्ज फार्मा कंपनी. तो आज थोड़ा सा हम समझने वाले हैं कि फार्मा कंपनी और फार्मा बिजनेस में कैसे सेल्स होती है. या यू आर लाइव बैक नाउ, Yeah. राहुल. Yeah. कैन यू हियर मी? Yeah. I can hear you. I अच्छा, hope you can. ओके. या यू आर ऑडिबल एंड आप स्क्रीन भी दिख रही है. तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन. तो बिफोर वी गो हेड, मैं थोड़ा सा आपका इंट्रो दे देता हूँ लोगों को. जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा इंट्रो है. राहुल का बैकग्राउंड क्या है. हेलो. Issue with streaming. I don't know. From time to time. ओके, you can join. Sorry guys, whoever is listening, I'm so sorry about the delay. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है राहुल के एंड पे. वो बोलते हैं ना, तकनीकी खराबी के कारण हम लोग अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं. तो 1-2 मिनट और दीजिए. आफ्टर राहुल जॉइन्स बैक अगेन. ही हैज ऑलरेडी बीन लाइव नाउ. हाय राहुल, कैन यू हियर मी? Yeah. 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 I can hear you. ओके, ग्रेट, थैंक यू. तो जो लोग हैं अभी प्लेटफॉर्म पे जो सुन रहे हैं अभी इसको, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक फटाफट से इंट्रो दे देता हूँ. सो वी हैव विद अस राहुल ननलू, who is the national head alliances from a very large pharmaceutical organization. And he comes from a commerce background, and he has completed his MBA in sales and marketing from University of Pune. He has experience working with very different organizations and industries, and he has an understanding of sales, technology, telecom, insurance and pharma industry की sales के अंदर उनकी काफी exposure और understanding है. He is a sales enthusiast with an experience of more than overall 20 years in companies like Vodafone, Samsung, ICICI, and his interests include programming, AI, and cricket. He is a firm believer of family first, keeps pushing himself to beat the odds every day. तो वेलकम राहुल, स्वागत है आपका. प्लीज आप मुझे पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जो मुझे बता रहे थे राहुल ननिलू, तो उसके बारे में क्या है चीज, वो क्या स्टोरी है वो. So I'm a South Indian by birth. I'm a born Telugu. My parents are Telugu,
and but I'm born and brought up in Pune, Maharashtra. So I'm अच्छा. currently residing in Mumbai for work purposes, but I'm born and brought up in Pune. I've Hmm. done my schooling, graduation, post graduation in Pune, and Okay. so I don't speak any of the South Indian languages. I should speak Telugu. Unfortunately, Hmm. I never learnt it, and हाँ. a mistake on my part. But I did not learn. I speak fluent Marathi, Okay. fluent Hindi, of course, and English. So these are the three languages that I do know, but no South Indian languages. तो खाना And कहाँ का पसंद है? so I married a Maharashtrian lady, and हाँ. you can understand that it is Maharashtrian food that नहीं, I prefer now. अब देखो यहाँ कंट्रोवर्सी हो सकती है. एक हो गया कि फोर्सफुल प्रेफरेंस है, मराठी खाना खाना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है. अब दूसरा है कि यार पसंद तो मुझे दूसरे जगह का है, तो वो क्या सीन है? क्या पसंद नहीं, भी सो महाराष्ट्रियन है? प्रेफरेंस तो मुझे महाराष्ट्रियन फूड ही है, बिकॉज अच्छा. ओके. born and brought up in Pune, and though we are South Indians, the food has tended to be mostly Maharashtrian because we are a fourth generation Maharashtrian family, so ओके. living in Maharashtra. So we are हम्म. more or less identified with Maharashtra as our Karma Bhumi and everything else. हम्म. गॉट इट. ठीक है, तो अब आते हैं हम उसके ऊपर जो आपने स्पेसिफिकली हमने आपकी प्रोफाइल में नोट की कि क्रिकेट के आप बहुत बड़े फैन हो. तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसको अपने काम के ऊपर प्रायोरिटाइज किया है कभी? मेरा काम हमेशा सेल्स का रहा है, तो अगर एक 3-4 साल छोड़ू तो आई हैव ऑलवेज बीन अ फील्ड गाय. हाँ. Before I moved to the corporate office, I have always हाँ. been on the field, and I have always believed in stepping out of the office by 10 a.m. So 9:30 हम्म. reach office, 9:30 reach office, move out at 10. So हम्म. once you are moving on to the field, then क्रिकेट का मैच दिन में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना काम है, काम पे लगे रहो. So कभी कभी तो किया that होगा, is. कभी कभी तो चुपचाप से 1 घंटा निकाल के बार में बैठ के बियर पीते पीते Uh, समटाइम्स यू मे हैव डन. so I am a fan of alcohol, but only on weekends, and that too अच्छा. very rarely. मतलब अगर बहुत ही कोई इवेंट हो तो, अदरवाइज वो भी नहीं. हाँ, अच्छा. क्रिकेट की ओके. मैच अगर लगती है तो यस, बट काम को छोड़ के नहीं. हाँ. ओके, चलो ठीक है. अब आपके काम के ऊपर आ जाते हैं. अभी काम के ऊपर राइट. काफी बात हुई है. सो राइट. आपने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया है. टेलीकॉम हो गया, नाउ यू आर राइट. वर्किंग इन फार्मा. कोई राइट. ऐसी इंडस्ट्री है, आपने एक्सपोजर तो 3-4 इंडस्ट्रीज का ले लिया है, बट कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको लगता है यार इस इंडस्ट्री की सेल्स मैं नहीं करने वाला, मतलब मुझे पसंद नहीं है. मतलब सुनते होंगे ना, एक्सपोजर मिलता होगा इधर उधर से. कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें सेल्स नहीं करना चाहते आप? एक्चुअली सच में बताऊं तो फार्मा ही वो इंडस्ट्री थी जिसमें मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं काम करूंगा. अच्छा, तो सो यहाँ कैसे आ गए फिर? हाउ डिड यू एंड यहाँ अप? so telecom was doing well, but हाँ. you might have heard that telecom has या. started or had started not doing so well, and the worst performing company was Vodafone Idea some time हम्म. ago. Now they are back on track, and thank God for that. But हम्म. things were not looking too good, and I was looking out, and somehow this opportunity came. And हम्म. I have this principle in life that never say no to any new company or new industry. So if हम्म. you've seen my bio, I have jumped from industries, IT हम्म. hardware to insurance to telecom and now pharma. So I did हम्म. not look back, and I'm happy I took this opportunity because it's a game, a different game altogether. हम्म. हम्म. चलो, मतलब इस डिफरेंट गेम की बात हो ही रही है तो मुझे एक सवाल पूछना है कि फार्मा कंपनीज के जब बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आता है ट्रस्ट, Right, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की जिंदगी का सवाल है. मेडिसिन, अभी वैसे ही right, कोविड के टाइम पे तो और ज्यादा इसका लोगों ने मतलब इम्पैक्ट देखा है कि कितना हो सकता है right. एक मेडिसिन का. तो इस Right. टाइम पे हाउ क्रिटिकल फॉर यू एंड हाउ डू यू मैनेज टू बिल्ड दैट फेथ कि लोग आपकी जो ब्रांड है, जो आपकी दवाइयां हैं, उस पे फेथ करें? मतलब हाउ डू यू बिल्ड दैट फेथ अराउंड योर कंपनी? So uh, not taking the name of my organization, but I can tell you that हम्म. this organization 111 years old. अच्छा. ओके, So दैट्स so वेरी it's a वेरी it's a वेरी it's वेरी a it's a ओल्ड. very या. old organization. It's one of the most हाँ. established pharmaceutical companies,
And people in the audience would identify immediately when I say, because there are very few 111 years old organization in the pharmaceutical business in India. Right. So it's a limited organization, limited company. It has been on the National Stock Exchange for a long period of time, and it's doing very well. So when it comes to trust, there is rarely a doctor in the country who wouldn't know, because there are some doctors whose families have been doing business with these organizations for 3-4 generations. आई मीन मेरे मेरे परदादा भी इन कंपनी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे, मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी, और अब मैं भी, वो वाली कहानी चल रही है. अच्छा, okay. So the trust is not a problem. The fact is that how do we ensure that the new products that are coming in have a bigger reach and a better trust? So that is where. And second Okay. part is the new doctors who are coming into the business. How do we ensure that they also are aligned with us for a long period of time? तो अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट जो है, हाउ डू यू इंश्योर, इसके ऊपर कितना ज्यादा आपका टाइम स्पेंड होता है कि यार ये जो इसके डॉक्टर्स आ रहे ऊपर हैं. ही इसके ऊपर ही टाइम स्पेंड करना होता है इस बिजनेस में, बिकॉज देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस in pharmaceuticals. One is that you do the traditional way of business, where the medical representative visits the doctors, does a genuine call, informs the doctor about the products, and aligns himself by updating the doctor and earns his trust, thereby earning the doctor's trust for the organization. That is the way to do business, right? So that is one. Second is to ply the doctor with some sort of gifts or some promotional material, and ensure that the doctor writes for us. Okay. Now, तो मतलब now my organization does not believe in the second way of doing business. We believe in the first and the proper way, and I think these are the basics of the business. If you, in any business or in any sport or in anything in life, if you stick to the basics, you tend to stay longer. right. So which is why we have stood the uh, test of time. बट यहाँ पे तो बहुत बड़ी एथिक्स की बात आ जाती है. मतलब आपके कॉम्पिटिटर, आई एम श्योर, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे होंगे जो सेकंड वाली स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं, बाय ल्योरिंग द डॉक्टर्स, बाय गिविंग देम गिफ्ट्स और परहैप्स अदर थिंग्स, यू नो, अदर इंसेंटिव्स, अदर बोनसेस, कि वो उनकी मेडिसिन और उनकी दवाइयों को रिकमेंड करें पेशेंट्स को. तो Correct. उस सिचुएशन में व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिनेरियो कि So या so let us agree to the fact that everybody has a right to do business. Whether it is the right way or the wrong way is something that we shall leave aside. Well, that is for the proper authorities to interpret and probably implement. Right. What we can do is we will continue doing our way of business. Right. What it will not get us big business, but what it will do is it will get us the right business. And the right business is to get trust from the doctors and the trust from the patients. So that is the way to go about it. Okay. It might not get us the number one spot in the rankings, but I don't think that number one spot in the ranking is what you want to do if it is not the just and the right way to do about it. Got it. तो अभी जैसे कोविड के टाइम पे रेस लगी पड़ी थी सारी फार्मा कंपनीज की मेडिसिन निकालने की, तो मतलब क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा कुछ सिनेरियो था कि यार ये तो निकालना ही है, मतलब already have a top selling drug. कल के ही इकोनॉमिक टाइम्स में आया है. अच्छा, अगर स्मार्ट ऑडियंस है तो वो कल की Yeah. इकोनॉमिक टाइम्स और कल के टाइम्स में देख ले. मैं फिर Right. से नाम नहीं लूंगा, but we have jumped 245% on the basis of that one drug Oh, that's so because huge. of COVID. That is so impactful. Yeah, so we have beaten our diabetic monolith as the number one leader now. Okay, that's amazing. So Congratulations to you. Thank you. So COVID has done wonders for us. सारी कंपनीज के लिए किया है, इनफैक्ट फार्मा में तो actually it has breathed a new life into the pharma business. Absolutely. चलिए, अब आप थोड़ा सा रोल के बारे में बताइए अपने, लाइक Right. आपकी डे टू डे रोल क्या रहता है नॉर्मली? यू हैव बीन अ नेशनल हेड. So currently I manage the B2B business.
वी ओके B2B का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस में 17 डिविजन्स है। हर ओके डिवीजन में करीब करीब 10 से 12 प्रोडक्ट्स है। अब हम्म ये प्रोडक्ट्स रिटेल में तो जाते हैं, विच इज द राइट स्टॉकिस्ट, द केमिस्ट एंड देन द एंड टू द कस्टमर, जो डॉक्टर राइट प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हो गया राइट ट्रेड वाला बिजनेस। या एक दूसरा बिजनेस है जो जाता है स्टॉकिस्ट, फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल के केमिस्ट, और फिर हम्म उनके पेशेंट्स के पास। अच्छा ओके सो आई मैनेज दैट पार्ट। ओके सो वाया So I हॉस्पिटल have to चैनल जो ensure, है वो उसके ऊपर आप right. फोकस So करते it is called the B2B business, and we हैं have 900 odd hospitals nationally. These दैट यू are हैव huge hospitals. एसोसिएटेड पार्ट Yeah. ओके तो इसमें क्या चैलेंज आता है मतलब पूरे दिन में आपका रोल क्या रहता है मैनेजिंग द एग्जिस्टिंग वंस एक्वायरिंग द न्यू वंस किस पे ज्यादा फोकस रहता है Managing the existing ones is the more difficult part. Acquiring new ones, हमारे कुछ रूल्स है जिसके बेसिस पे हम ये हॉस्पिटल्स नए इनकॉर्पोरेट करने हैं कि नहीं हमारी लिस्ट में, उसके ऊपर। सो वी डू नॉट वांट अच्छा टू डू टू मच, क्योंकि ये 100 बेडेड हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उनका एक कितना टर्नओवर होना चाहिए। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू बिगर बिजनेस, बट जो है, फॉर एग्जांपल हम्म फोर्टिस हॉस्पिटल होगा दिल्ली में, या हम्म एम्स होंगे, या धीरूभाई हम्म, अंबानी होगा, या सो दीज आर द हॉस्पिटल्स दैट वी केटर टू। अब इनके अच्छा साथ रिलेशन बिल्ड करना ये पहली बात है, और बिल्ड किया हुआ हम्म रिलेशन मेंटेन करना ये दूसरी बात है। सो रिटेन मेरा करके जो रखना काम होता है, हाँ, मेरा जो काम होता है कि मेरी टीम्स कॉल्स कर रही है कि नहीं, हम्म वो कॉल्स एंड 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 कस्टमर मतलब हॉस्पिटल के एडमिन के साथ हो रही है कि नहीं, और फिर हम्म उनका जो स्टॉक है वो स्टॉक एज पर रेलेवेंट नॉर्म्स है कि नहीं, और वो हम्म नॉर्म्स अगर कहीं डिप हो गए तो उसके लिए क्या एक्टिविटी है, अगर ओवर हम्म स्टॉकिंग हुई तो लिक्विडेट क्यों नहीं हुआ। सो दीज आर दी हम्म चैलेंजेस दैट आई फेस। वी हैव हम्म सो 900 हॉस्पिटल्स है, उसमें से 500 600 एक्टिव है, जो कि ए हम्म प्लस कैटेगरी में आएंगे। सो उसमें भी कैटेगराइजेशन है। सो ए हम्म प्लस है, ए है, बी है, सी है। सो जो सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं वो हर महीने एक्टिव हुए कि नहीं, एक्टिव हुए तो उन्होंने पिछले मंथ को पिछले महीने से ज्यादा किया कि नहीं, कम से कम हम्म उन्होंने पिछला मंथ तो मीट किया कि नहीं। फिर ए हम्म कैटेगरी को ए प्लस में पुश करे, बी को ए में पुश करे, सी को बी में पुश करे। हम्म This is all distribution parlance, but I guess you understood what I'm trying to say. राइट राइट तो यहाँ पे इतने लार्ज स्केल पे आप हॉस्पिटल्स को मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट जिसके ऊपर मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके ऊपर हमने हल्का सा टच पेस पहले भी किया था बट Right. इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर व्हिच वी आल्सो ऑब्जर्व्ड इन आवर बिजनेस इज दैट देयर आर ऑलवेज बायस जैसे मान लीजिए आपकी मेडिसिन काफी अच्छी चल रही है सीएमओ ने डिसाइड कर लिया कि आपके मतलब उस हॉस्पिटल के सीएमओ ने डिसाइड कर लिया व्हिच इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर कि यार यही मेडिसिन को हमें प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट्स को ठीक है और यही हम लोग रिकमेंड करेंगे अब नीचे एक डॉक्टर आता है जो नया है ठीक है उसको किसी थर्ड फार्मा कंपनी ने अप्रोच किया और बोला कि यार आप ये करो मतलब इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस या जो भी चीजें दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ तो अब प्रॉब्लम क्या आती है ना कि सीएमओ तो चाहता है कि मैं यही करूं बट नीचे से जब उसको चार लोग बोलते हैं ना डॉक्टर्स कि नहीं ये ज्यादा बिक नहीं रही है या जानबूझ के वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करते हैं जस्ट टू फेवर दी अदर कॉम्पिटिटर हाउ डू यू आप डील विद दैट आप बिजनेस की सीक्रेट निकलवा रहे हो नितिन जी। जितना तो आप शेयर ऐस, कर पाओ तो ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल एंड द हम्म एज ऑन नेटवर्क ऑफ द डॉक्टर, हम्म कौन किस हम्म पे हावी होता है ये डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड हम्म दिस। So for example, if you've got a big hospital and its CMO is very powerful and the doctor हम्म is comparatively young, he हम्म will of course dictate terms हम्म कि हमारा टारगेट इस महीने का ये इतना पूरा हम्म करना है करके। हम्म Usually hospital CMOs don't take targets, they are too big and राइट they are not interested in all this, राइट but if we have got a very good relation this might happen। हम्म अगर अगर जो डॉक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अगर बहुत बड़े कार्डियो है हम्म और उन्होंने कहा कि यार मेरा रुतबा है, मैं तो यही प्रिस्क्राइब करता हूँ इन माय पर्सनल राइट कंसल्टेंसी एंड आई विल राइट कंटिन्यू विद दिस, द हॉस्पिटल हम्म विल अकोमोडेट, दे विल नॉट से नो। So it's a ओके case to case basis wali situation, and हम्म mostly the doctor wins is what I've seen, unless the doctor is pretty fresh or young.
अदरवाइज गॉट इट। अब ये आप अगर हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी कर रहे हो ना, तो आप फ्रेश और यंग तो होते नहीं हो, आप एस्टेब्लिश्ड होती है आपकी कंसल्टेंसी, तभी राइट, आप एज अ कंसल्टेंट डॉक्टर पैनल में आ जाते हो. राइट, सो यूजुअली द करेक्ट, डॉक्टर विंस, द डॉक्टर डिफाइंस के उसको क्या प्रिस्क्राइब करना है. गॉट इट। दूसरा मेरा क्वेश्चन जो आपकी बात से हुआ कि आपने बोला यार 900 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से 500 ऑलरेडी एक्टिव हैं, तो इतने लार्ज स्केल पे जो नेटवर्क है इसको मैनेज करने के लिए यू नो हाउ डू यू डील विद दैट? डू यू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी? यू नो Absolutely. बीइंग अ लेगेसी कंपनी, व्हाट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज डू यू बिल्ड दोस So टेक्नोलॉजी इन हाउस, या आप no. आउटसोर्स करते हैं, कोई सीआरएम्स यूज करते हैं, मतलब किस तरीके से मैनेज करते हैं? So we already have a CRM. We हम्म, have had it built as per our requirement. I ओके, wouldn't take the name of the company या or how, श्योर, but and it has been in existence for 5-6 years. They are ओके, pretty accommodative. हम्म, In fact, अभी तक तो ट्रेड के बिजनेस के ऊपर ही कर रहा था. जब से मैं आया हूँ, सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड अ जॉइंट फील्ड वर्क वाला मॉड्यूल इन दिस. हम्म, So I'll just go into the business part so that you understand the CRM part of it. राइट, ये जो विजिट होती है हॉस्पिटल में, ये दो पार्ट में होती है. एक होता है कि B2B डिवीजन का आदमी जाता है, जो हम्म, स्टॉक चेक करता है केमिस्ट के पास और हॉस्पिटल के सीएमओ के पास, हम्म, राइट. और एक होता है हमारा ट्रेड का एमआर, जो उसके साथ हम्म, जाता है और जो डॉक्टर से मिलता है, क्योंकि उसका डॉक्टर से बाहर से पहचान है. ही हैज हम्म, बीन विजिटिंग हिम इन द कंसल्टेंसी ऑल्सो. राइट, राइट, तो वो रिलेशन तो वो तोड़ेंगे नहीं. तो ये करेक्ट, दोनों मिलके साथ, ये दोनों साथ मिलके जाते हैं हम्म, और ये दोनों अपना अपना काम करते हैं, जिसको ओके, कहते हैं हम जॉइंट फील्ड वर्क. इस जॉइंट फील्ड हम्म, वर्क से होता ये है कि बोथ द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. ये डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी निकलवाते हैं और वो राइट, प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट के पास भी लेके जाते हैं. हम्म, अब आई विल कम टू द सीआरएम पार्ट. अभी हमने हम्म, जो हमारा सीआरएम है, उसमें ये था नहीं, ये ट्रेड ही था. अभी हम्म, हमने हॉस्पिटल में ये इनकॉर्पोरेट किया है. सो वी हैव बिल्ट a module in which the hospital is the fulcrum of that entire module. हम्म, हम्म, So both these guys, first whether they go or not, and second हम्म, which hospital they go, which doctor they meet, and what is the outcome. So ये मैंने हम्म, incorporate करवाया है, हम्म। and it has come out wonderfully, and we are seeing the results from it. Do you agree that your experience and backgrounds working with the telecom, थोड़ा सा टेक ओरिएंटेड सेक्टर ज्यादा रहता है, वो Right, उसकी right, वजह से ही आप ये सब यहाँ कर पा रहे हो? right. I enjoy doing this because my background. So my MBA is in information technology, and my second MBA हम्म, is in, my dual specialization is in marketing. हम्म, So I have a software background. So which is राइट, why, प्रोग्रामिंग आपने वैसे ही मेंशन किया, आपको बहुत इंटरेस्ट है। right. अभी So करते हो so which कोडिंग? is, अभी भी करता हूँ कोडिंग, अभी भी अभी करता हूँ लास्ट क्या कोडिंग. कोड किया था आपने? So I program in Python. Currently, मैं that's मी टू, my that is my favorite thing. I'm still learning या, Python. मैं हाँ, इसके पहले C sharp पे कर रहा था, but somehow अच्छा, the international markets, या, मैं इक्विटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ. तो हम्म, स्टॉक्स पे एल्गोरिदम्स तैयार करना और या, एल्गोरिदम के वो ऊपर सब कोड पाइथन में करना, ही, या, वो ट्रू, सब पाइथन में होती है. उसमें लाइब्रेरीज राइट, भी बहुत अच्छी है. लाइब्रेरीज अवेलेबल रहती हैं, तो करेक्ट, तो जो ta.lib है, उसको मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ. पाइथन इज लाइक अ सी, इट्स अ बिग अच्छा, सी, सी एज इन SEAC की बात कर रहा हूँ मैं. या, तो अभी आई एम जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस. तो हम्म। टाइम मिलता है तो वो करता हूँ, अदरवाइज तो ये चल रहा वीकेंड पे स्प्रिंट मारते हो कोडिंग की, या कब होता है नॉर्मली? है. एक्चुअली आई डू इट इन द वीकेंड्स ओनली. सैटरडेज, हम्म, Sundays हाँ, are for my wife. Saturdays ओके, is for me. एंड मराठी फूड, Sorry, एंड मराठी फूड, and Marathi food. Marathi food. So Maraठी food is मतलब कोई चॉइस ही नहीं है, वो मेरा बहुत फेवरेट या, है. और weekends we tend to go out also. So I enjoy ओके। moving around in Bombay. We are foodies. I love going to different places in Mumbai. आपको आपको भी शौक है क्या शाहरुख का घर देखना है, अमिताभ का घर देखना है? बहुत बार देख चुका हूँ. अभी तो मतलब मुझे लगता है शाहरुख एक दिन बोल देगा ये रोज वहां दिखता है हमको करके. एक बार एक दिन मेरे को लगता है आपके घर आएगा, मैं आपका भी घर देख जाता हूँ, आप तो मेरे बार इतना देख चुके हो। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। Sure. तो एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि यार कौन सी
सेक्टर की मतलब सेल्स आपको करनी नहीं पसंद है, वो तो आपने बता दिया कि कैसे आप फार्मा में आए। बट कोई ऐसा सेक्टर है कि जो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लगता है कि यार इसकी तो सेल मेरे को बहुत पसंद है? I would love to do software as a service, SaaS अच्छा, sales. Uh, मैं I would love to work in a company like Salesforce or Oracle. ओके, Uh, I think I would be very good at analyzing businesses and coming up with solutions. हाँ। So anybody out there in the crowd listening to me, please call अब me, ये please. अब ये अब ये Joking, joking. डिस्क्लेमर डाल देते हैं हम इसमें कि But ये कुछ-कुछ इसमें पार्ट्स जोक्स हैं, कृपया सीरियसली हर बात को ना लें। but I would love to work in a software company. I have never done it, but yes. And second business that I would love to probably in one of these new age companies like Dream 11 or uh, Zomato or Ola or something like that, हुँ, which ओके, is tech plus business हुँ, प्लस मार्केटिंग आई थिंक एट अ plus लार्ज स्केल। marketing. या, Absolutely. या, ओके, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज़ आपका जो एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट है कोडिंग में, Right. इसीलिए Right. ज़्यादा आपको वो एस्पायर करती हैं, वो इंस्पायर करती हैं Right. उस डायरेक्शन की जॉब्स। Right. तो खैर आपने इंश्योरेंस के अंदर भी काम किया। मुझे ये बताइए Right. इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सेल्स कितनी चैलेंजिंग लगती है? मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत एनॉय हो ज्यादा. जाते हैं कि यार मुझे फ़ोन मत करो, मुझे परेशान मत करो, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? We keep hearing all those things. So how do you manage that? इंश्योरेंस इज अ डिफरेंट बिजनेस. इंश्योरेंस Hmm. अगर ठीक से किया जाए तो इट इज रिक्वायर्ड. एवरीबडी शुड Hmm. बाय इंश्योरेंस. अब Hmm. उसको करना कैसे है? सो आई हैव वर्कड इन टू वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस. वन इज इन ICICI Prudential, the Hmm. second is Max New York Life. And Right. what I've learned and what I would like to say is that insurance is best sold in the traditional way. Again, the basics, Hmm. where an insurance advisor with his manager visits a client and understands Hmm. whether the client is adequately insured Hmm. as per his age, as per his income, and suggests a suitable insurance plan. Right. अब ये अगर किया जाए तो इंश्योरेंस बिकता है. अगर आपको Hmm. कोई फोन करके रैंडमली बोले कि सर आप इतने इंश्योरेंस ले लो. पैसे डालिए, आपको 5 साल में इतने मिलेंगे, 10 साल में इतने मिलेंगे, Hmm. दैट इज नॉट इंश्योरेंस. Hmm. How do you सो how do दैट you इज manage नॉट. that? मतलब बहुत सारी जगह पे तो ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी आउटसोर्स किया होता है कॉल सेंटर को कि आप सेल करो. तो वो मोस्टली नहीं आई थिंक होना ऐसे ही चाहिए. रहता है. वो नहीं होना चाहिए. वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और मैं जिस इंश्योरेंस में दो तरीके के चैनल्स होते हैं. अभी तीन हो Hmm. गए, पर तब दो थे. एक Hmm. होता है बैंक एश्योरेंस, विच इज इंश्योरेंस बीइंग सोल्ड थ्रू द बैंक्स. Hmm. एक होता है टाइड. टाइड मतलब जो एडवाइजर्स होते हैं, तो उसको राइट. टाइड कहते जैसे हैं. और एलआईसी एक के बहुत सारे तीसरा, एडवाइजर्स होते हैं. करेक्ट, तो उसको टाइड कहते हैं, जो Hmm. मैनेजर के साथ अंडर Hmm. काम करते हैं और वो मैनेजर फिर रिपोर्ट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द कंपनी. और ओके. एक थर्ड अभी आने लगा है जिसको DSA मॉडल कहते हैं. मतलब अभी काफी सालों से है, बट Hmm. वो चैनल आई डोंट नो. आई पर्सनली डोंट लाइक द वे दैट इंश्योरेंस इज सोल्ड. Hmm. Probably because it is easy to reach the customer by giving him a call. It is preferred, but that is not the way to do it. अगर आप Hmm. जेन्युइनली कुछ बेचना चाहते हो तो आप प्रॉपर तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट लेके उसके पास पहुंच के उसको नीड दिखा के Hmm. फिर बेचे. उससे क्या होएगा? और दैट Hmm. देयर विल बी लॉन्जेटिविटी. द कस्टमर विल स्टे विथ यू फॉर द एंटायर Hmm. ड्यूरेशन ऑफ दैट पॉलिसी. Hmm. यहाँ पे एक चीज मुझे पूछनी है. अभी कोविड के टाइम पे आधे लोग ऑब्वियसली घर हैं, राइट? सो एंड फील्ड सेल्स का अगर हम देखा जाए तो बहुत सारा फील्ड सेल्स का जो स्कोप था वो बहुत कम हो गया था, बिकॉज यू कांट गो आउट मीट पीपल द वे यू वर डूइंग इट अर्लियर. तो जैसे आप जो बता रहे हैं कि नॉर्मली जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट सेट करनी चाहिए, वो मैसिव लेवल के इंश्योरेंस में तो आपका समझ में आता है कि बहुत बड़ा क्लाइंट है, B2B अपॉर्चुनिटी है, उनके पूरे एम्प्लॉइज के लिए अगर हमें सेल करना है. बट जो इंडिविजुअल्स हैं
उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा कि ये फील्ड सेल्स जा जाके उनको बेचें, बिकॉज पीपल I आर स्टिल एप्रीहेंडेड कि घर पे आना नहीं चाहिए कोई कोविड के चक्कर में. Right. So which is why insurance companies suffered during हम्म. this period. हम्म. But that still does not हम्म. get us to the fact that it राइट. should be missold. ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. Mis-selling खासकर मैंने ये is, चीज ऑब्जर्व की है, मतलब 60 प्लस एज ईयर्स के ना उनको बहुत ज्यादा लोग सेल कर देते हैं. इनफैक्ट आज ही मैंने कोई पोस्ट पढ़ी थी लिंक्डइन पे, उसमें भी यही बताया हुआ था कि जो एज्ड लोग होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा एफडी कराने जाते हैं बेचारे, उनको इंश्योरेंस चिपका देते हैं. वो उनको सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेचते हैं. हाँ, तो सिंगल यूलिप प्रीमियम वगैरह. पॉलिसी में कोई इंश्योरेंस होता नहीं है. वो तो राइट. सिर्फ आपका मतलब इट इज अ सिंगल प्रीमियम, एंड आफ्टर अ हम्म. सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट सम अमाउंट विद सम इंटरेस्ट ऑन इट. राइट. सो दैट इज अ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी. पर मुझे हम्म. एक बताओ कि अगर कोई एफडी करने जाए, अब इंडिया में एफडी के रेट चल रहे 6 और 7 के बीच में. या. अगर आप उसको सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेचोगे तो भी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है उसको, 6 और हम्म. 7%. तो विच इज हम्म. मिस सेलिंग ना. आपने उसको ज्यादा तो कुछ दिया नहीं ना, आपने उसको राइट. कोई इंश्योरेंस बेचा उस पॉलिसी के साथ. सो व्हाट हम्म. इज द पॉइंट इन सेलिंग इट. हम्म. करेक्ट. कुछ दैट्स ट्रू. दिनों बाद जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि ही हैज बीन मिससोल्ड, either हम्म. he will regret it and still keep हम्म. it, or he will हम्म. give it back and हम्म. surrender it. राइट. दैट्स ट्रू. खैर, हम अभी सेल्स स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं कि क्या सही तरीका होता है, क्या एथिक्स होते हैं सही तरीके से बेचने के. तो मतलब इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, कोई ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री जो आपको लगता है कि ये बेस्ट तरीका रहता है, अगर मैं किसी भी नई कंपनी में जाऊंगा, नई इंडस्ट्री में जाऊंगा, तो ये वाला एक अप्रोच जो है ना, ये तो मैं फॉलो करूंगा ही, ताकि एटलीस्ट एक ग्राउंड पे हम आ जाएं. तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको पता है? मैं उसको 2 लाइन में कहूंगा. एक तो प्लान योर बिजनेस एंड देन हम्म. एग्जीक्यूट योर प्लान. ओके. सो बिजनेस प्लान करना मतलब सारा जो डेटा है उस कंपनी का आपके बिजनेस के रिलेवेंट, वो हम्म. आपको एनालाइज करना है हम्म. एज एन एनालिस्ट, कि वो बिजनेस आया कैसे, आया कहाँ हम्म. से, क्यों आया, और आप कहाँ पे हो. सो वेयर आर यू एज हम्म. ऑफ नाउ. सो वेयर इज दैट एक्स. जब आप इस राइट. पे आ जाओ कि आपको एक्स पे हो, आपको वाई पे जाना है, हम्म. तो एक्स और वाई के बीच में जो गैप है उसके फिर इम्पेडिमेंट्स क्या है. हम्म. तो जब तक आप एक्स पता नहीं करोगे तब तक आपको वाई पे जाना कैसे ये पता नहीं चलेगा. सो व्हाट आई हम्म. हैव यूजुअली डन इज कि आई एम अ वेरी स्ट्रांग एनालिस्ट एंड बिलीवर इन एक्सेल एनालिसिस, कि ओके. कहाँ पे है बिजनेस, क्यों आया, कैसे आया, उस कंपनी के सीआरएम कैसे काम करते हैं, व्हाट इज द डेटा दैट दे कलेक्ट ऑफ हम्म. ईच कस्टमर. तो हम्म. अगर मैं इंश्योरेंस में बोलूँ तो वेटेड रिसीटेड प्रीमियम बोलते हैं, WRP. हम्म. वो किस पॉलिसी से आया, कितना आया. टेलीकॉम में अच्छा. बोलूँ तो उसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, आरपू. या. ARPU. और अगर मैं या. डॉक्टर की बात करूँ तो उसको POB कहते हैं, प्रूफ ऑफ बिलिंग, मतलब डॉक्टर ने कितना अच्छा. प्रिस्क्रिप्शन किया. अच्छा. ओके. So when you go to the crux of that particular data, then you understand हम्म. that what is this particular data telling you, and हम्म. how do you increase that. Now, हम्म. each of these data points is a multiplier of different factors. ओके. Okay, so it all comes down to ये जो सेलिंग वाले जो बिजनेसेस होते हैं, इसमें हम्म. नंबर ऑफ FOS into number of calls is equal to number of sales. I'll go back, I'll व्हाट डू say यू. it again. या. Number of FOS, that is number of हम्म. people who sell, number of राइट. sales people, into the number of calls that they make, is हम्म. equal to the amount of sales. This is the हम्म. broad equation. हम्म. Okay. So we have to come down to understanding कि अपने पास कौन सा फैक्टर नहीं है. Do we have the number of people who sell? Are they making the number of calls required? हम्म. And if both of these factors are coming together, then are we getting the amount that is required? हम्म. Now, usually it is in these three places that we are going to find the gaps. Once you plug in those gaps, your business will improve. ओके.
तो अब इसके अंदर एक कन्वर्जन का भी तो फैक्टर होता होगा जो हर इंडस्ट्री के हिसाब से वेरी करता होगा, जैसे टेलीकॉम में अलग है, फार्मा में अलग होता होगा। सो कोई ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा कोल्ड कॉल करके ज्यादा कन्वर्जन आपको लगता है ऑब्जर्व हुआ है लास्ट में? अगर इसी फॉर्मूला को देख ले हम, number of people multiplied by number of calls multiplied by the conversion ratio equals to the business that we have. So So what do you, yeah, now conversion ratio differs from business to business. right, अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं तो टेलीकॉम में इट वाज 10:1, मतलब 10 कॉल करते थे, क्योंकि मैं पोस्टपेड में था। अच्छा, ओके, प्रीपेड में तो कोई कॉलिंग वाला फीचर है नहीं, पोस्टपेड में है। हम्म, हम्म, अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन लेवल बिजनेस में बोलूं, डॉक्टर्स में, तो हम्म, उसका डायरेक्ट कन्वर्जन ऐसा पता करना मुश्किल है। ओके, अच्छा, वो एक पीओबी वाला फैक्टर है जिसमें हम कहते हैं कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया, बट दिस इज व्हाट द डॉक्टर हैज सेड दैट ही हैज डन एंड व्हाट द केमिस्ट हैज सेड दैट ही हैज रिसीव्ड, बट दिस इज हम्म, वर्ड ऑफ माउथ, उसका कोई एक्यूरेट फैक्टर नहीं है। हम्म, सो हम्म, व्हाट वी हैव कम टू इज ईच, अगर फार्मास्यूटिकल बिजनेस के बारे में ये बताऊं, तो ईच एमआर इज गिवन 100 डॉक्टर्स, कभी 90 हम्म, होते, कभी 110 होते हैं, हम्म, depending on his capability and age on network, but not more than 110 and not less than 90. हम्म, Okay. Now, once we have got these 100 doctors, he has to call those doctors basis their categorization. A plus है, A है, B है, C है। हम्म, अब A प्लस डॉक्टर के ऊपर अगर वो फोकस करेगा और उनका अगर प्रिस्क्रिप्शन उसको लाना है एज पर लास्ट हम्म, मंथ, देन ही हैज टू डू 3 calls हम्म, in a month to that doctor, to that doctor. हम्म, ए करेगा तो 2 होगा, बी करेगा तो 1 होगा, सी को 2 हफ्ते में एक बार करेगा। अच्छा। तो ये आपने पूरा प्रोसेस पुराने एक्सपीरियंस करते करते, ये इटरेट करते करते ये बना लिया है। ये हाँ, ये आ जाता है, और हम्म, इसको कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिविएशन इन दिस। हम्म, If you adhere, like I said a long time ago, if you adhere to the basics, you are हम्म, never likely to go wrong. And whenever you deviate from the basics, you will always find that you are in trouble. So in life, हम्म, whenever you are in trouble, go back to the basics. हम्म, राइट। तो अभी ये पूरे इसके ऊपर हम बात कर ही रहे हैं कि डोंट डेविएट फ्रॉम द बेसिक्स। अभी आपकी बहुत बड़ी टीम है जिनको आप मैनेज Right. कर रहे हो, राइट? Right. वो प्रॉब्लम तो आती होगी कि कोई ना कोई तो डेविएट करता होगा बेसिक से। तो हाउ डू यू मैनेज दैट पार्ट? कितना चैलेंजिंग होता है वो डे टू डे एक्टिविटी में? So, सच में बताऊं तो I don't manage them directly. I have अच्छा, ZMs and then RMs and then AMs, and then अच्छा, ओके। so the hierarchy is pretty big. हम्म, So I manage only 6 ZMs. वो अगर ओके, उनके टीम को मैनेज नहीं करेंगे तो मैं हम्म, 260 लोगों को तो बिल्कुल मैनेज करने से रहा। राइट, हाँ, मैं उनके, so what I do is from time to time, I used to हम्म, do it daily. Now I do it one alternate day. I take phone calls हम्म, twice a day, in the हम्म, morning and in the evening, हम्म, on the business basics with हम्म, data. And then I ask them to speak on 2 factors. One is whether if they have done well, how did they do it? And if they have not done well, what is it that went wrong and how would they correct it? ओके, And uh, the secret is in being consistent with these con calls. हम्म, Currently, we do a ऑलराइट, Zoom calls, which is much better than con calls, हम्म, and we make people speak. And when you have a group sharing of या, their success and failures, या, the learning is faster. राइट। थोड़ा और And प्रेशर भी तो आ जाता है ना कि मतलब हाँ, अगले हफ्ते मुझे जाके सबके सामने बोलना है, correct, तो मैं क्या correct, जवाब दूँगा? वो correct, एक काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है, ये चीज़ correct, ऑब्ज़र्व की है मैंने। correct. अकेले-अकेले कॉल करने के बजाय अगर आप ग्रुप कॉल करते हो तो डायनामिक बहुत चेंज हो जाते हैं आपके। एब्सोल्युटली, और है ना, बहुत सारी लर्निंग हो जाती है, और वो स्ट्राइव करना शुरू कर देता है कि इफ आई हुँ, हैव बीन सक्सेसफुल टिल नाउ, आई शुडंट हुँ, लेट इट गो, एंड इफ आई हैव करेक्ट। बीन अनसक्सेसफुल, हाउ डू आई बिकम सक्सेसफुल? हाउ डू यू बिकम, या इम्प्रूव कैसे करें? लास्ट वीक तो मैंने करेक्ट, कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया, अब अगले हफ्ते जाके फिर टीम को बोलना है करेक्ट। कि तो वो जवाब देना प्रेशर इतना आ जाता है कि काम अपने आप करने लग जाता है बंदा। अच्छा, इस फार्मास्यूटिकल बिजनेस में देयर इज वन मोर फैक्टर कॉल्ड द stockist, who is हुँ, not on the payrolls of the company. The stockist is an independent body who हुँ, caters to around 70, 80 different pharma companies or more. हुँ,
depending on where he is. So he also has to be managed. तो उसको भी बिलिंग करना और स्टॉकिस्ट का जो मैनेजर है, स्टॉकिस्ट का जो ओनर है, उसको भी ठीक से मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी of the not the medical representative but the area manager and the regional manager. So that is also something that we keep discussing in every con call. So is it different channel altogether to manage those? Yeah, it's a part No, of it's the the same existing. channel. It's the same channel. समझो, let me explain. अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, ओके, और मैं अगर वो उसको कहता हूँ कि भैया आप 100 पीसेस ले लो, वो कहता कि नहीं, पिछले महीने के मेरे पास ऑलरेडी 80 पड़े हुए, मैं 100 क्यों लूं? So there has to be some justification where you tell him that how you will ensure that all the 180 will get liquidated in the next month. उसके लिए आप क्या करोगे और वो क्यों आपसे लेगा? Finally, he is the one putting money, right? Right. And investing in your product. So he is a तो उसके stockist. लिए क्या करते हो आप? हाँ, तो उसके लिए जो है कि आप किन किन डॉक्टर से बात करोगे, क्या बात की है, दिस इज व्हाट आई आस्क्ड द आरएम, द रीजनल मैनेजर. आपने डॉक्टर से बात करी, एरिया मैनेजर भी होता है कॉल पे, तो वो बताता है कि इनसे बात करिए, इन्होंने इतना कमिट किया है, उनसे बात करिए, उन्होंने इतना कमिट किया है, और एंड में वी कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये इतना जाएगा. अब अगर आप किसी के पास 80 है, आपने उसको 100 और दिया, तो वो ये कहता है कि आप 180 पूरा लिक्विडेट मत करो, तो कम से कम 120 तो कर दो. So that way that he has a ruling, he doesn't mind keeping some stock in spare, but he will ask you to liquidate some part of it. So it is basically a business of mutually winning. तो ये तो रोज की, मतलब इतनी मैसिव स्केल पे, हाँ रोज की वो है, तो ऑपरेशंस हैवी डिस्कशंस. राइट. तो आपने पूछा कि आपका दिन कैसे जाता है, तो ऐसे जाता है. हाँ, अब मैं समझ पा रहा हूँ कैसे जा रहा है आपका दिन. चलिए, अब थोड़ा सा टेक के ऊपर आ जाते हैं, और एक आप मुझे ये बताइए, आपको सोशल सेलिंग इंडेक्स के बारे में आपने काफी कुछ बात की है, उस क्या है वो थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए. हालांकि मैंने एक पोस्ट बहुत पहले डाली थी इसके ऊपर, बट व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड एक्सप्लेन व्हाट इज सोशल सेलिंग इंडेक्स एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल. So okay, social selling index मेरे हिसाब से contains 4 factors. Though I wouldn't be able to tell you immediately. I had read it up, but it tells 4 different things, and I would require your help after my explanation. Okay. Sure. So first is how well am I connected with my peers and with the industry. Second, whether I am connecting with the right people. Right. Third, whether I'm using LinkedIn in a proper manner to connect with the people that I should be. True. And fourth, whether I'm putting in right amount of data, feeds, articles to grow and improve LinkedIn and myself as a person. So I think this is crux of social selling index. I just checked up on my score and it is 50 out of 100. And I've been told that I am in the top 9% in my line of business, which is pharmaceuticals. Though comparatively I should be higher, but somehow posting articles is something that I have not given a lot of thought to. I think I will improve upon that. Right. तो मतलब आपने बिल्कुल सही सारे के सारे फैक्टर्स बोले हैं. जो लोग सुन रहे हैं, एक हल्का सा पॉइंट उसमें मैं ये ऐड करता हूँ कि सोशल सेलिंग इंडेक्स जो होता है वो लिंक्डइन का एक फॉर्मूला है, जिससे वो ये बताता है कि आप कितने ज्यादा मतलब सोशली एंगेज्ड हो उस प्लेटफॉर्म पे, कि मतलब जितना आपका स्कोर हाई होगा ना, उतना चांसेस आपके ज्यादा हैं कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, या आपको लोग रीच आउट करेंगे, इनबाउंड लीड्स आएंगी, आपका कंटेंट राइट ऑडियंस को विजिबल हो पा रहा है. तो जितना हाई आपका स्कोर है, उतना आपका अच्छे चांसेस हैं एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट करने के. इसको बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार आपके पास पैसे कितने हैं, तो लिंक्डइन की भाषा में ये बोला जाता है कि व्हाट इज योर नेटवर्क कैपिटल वर्थ. आपका नेटवर्क का जो कैपिटल है वो भी एक वैल्यूएबल चीज होती है. अब मैं राहुल से कनेक्टेड हूँ, अब कल को राहुल को मेरे से कोई जरूरत हो, या कल को मुझे राहुल से कोई जरूरत हो, तो भी डेफिनेटली आर कनेक्टेड ऑन अ मच हायर लेवल टुडे. तो इसी को चीज को बोलते हैं सोशल सेलिंग इंडेक्स, हाउ डीपली यू आर कनेक्टेड विद द पीपल दैट यू आर. सो द हायर यू हैव स्कोर्ड, आप चेक भी कर सकते हो, गूगल करेंगे लिंक्डइन पे जाके, सॉरी लिंक्डइन पे को आप गूगल करेंगे, तो
तो आपको पता लगेगा व्हाट इज सोशल सेलिंग इंडेक्स एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्कोर दैट यू कैन चेक योरसेल्फ. I think everyone should have a good social selling index score. It helps. It really राइट, does. एब्सोल्युटली. आप ये बताइए राहुल के वुड यू बी अ फाउंडर और अ फंडर, दोनों में से क्या चूज करते हैं? I would be a funder. अच्छा. I'll give you a reason for that. हाँ. I love analyzing businesses, and I couldn't ever stick to one business. I would like to be part of many businesses, so I would be a funder. गॉट इट. तो कोई किसी बिजनेस में आपने कभी ऐसा इन्वेस्ट करने का मौका मिला या प्लान कर रहे हो आगे जाके? आगे जाके प्लान कर रहा हूँ, अभी तो नहीं किया है. अच्छा, चलो, तो काफी नेटवर्क्स अभी ये सुन के आपके पास आएंगे अभी. चलो, अब लास्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछना है बिफोर वी जंप ऑन टू द ऑडियंस क्वेश्चंस. कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल जो आप यूज करते हो जो आपको बहुत हेल्पफुल होता है आपकी सेल्स या मार्केटिंग एक्टिविटी में, अपार्ट फ्रॉम द सीआरएम जो आपने कस्टम बिल्ड किया है? कोई ऐसा टॉप ऑफ द माइंड अगर आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो इट्स टोटली फाइन. एक्चुअली सच में बताऊं तो वो जो सीआरएम है वो फुल्ली फंक्शनल है. इट अच्छा. हैज इट हैज नथिंग एल्स दैट वी रिक्वायर. और हम्म. क्योंकि वो बहुत अकोमोडेटिव है, सो वी हम्म. हैव नॉट फाउंड एनी नीड टू गो एनीवेयर एल्स. तो जो भी होता है उसी में ही आप हाँ, कस्टमाइज वो करवा लेते डेटा हो? काफी, प्लस द आईटी टीम हम्म. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मैलिएबल. मतलब वो उन्होंने ऐसे हम्म. कभी नहीं कहा कि ना कोई चीज इट इज डन इन 24 आवर्स. One thing about हम्म. pharmaceutical industry, I must say, and I really like it, that they are really fast when it comes to हम्म. taking any changes. राइट, वो स्पीड तो हमने देख ही ली है अभी कोविड के टाइम पे. Actually, I really हाँ. like it. जो या. बाहर बैठे हुए हैं ना, जिनको फार्मा के बारे में मालूम नहीं है, उनको लगेगा कि कैसे चलती है. But you हम्म. should really work in pharma once in your life to understand how. So I would have said that for insurance also and telecom also. I'm saying it for pharma. और अब इसके बाद आप सैस के बारे में भी बोलोगे, ये भी मैं बोल देता हूँ. चलो, ओके, आई थिंक आवर कन्वर्सेशन इज मोर और लेस डन नाउ. Yeah. तो जो भी ऑडियंस में है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज, वी आर जस्ट फॉर 3 और 4 मोर मिनट्स नाउ. तो अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछ लीजिए. कुछ कमेंट एक तो आए भी हुए हैं. थैंक यू प्रदीप, थैंक यू अमित. Amit is asking, in pharma, patent copy issue is very, very high. How do you manage that? A very interesting question. So फार्मा में पेटेंट इशू होता है, पर इंडिया में जो फार्मा है ना, वो जेनेरिक फार्मा के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब हम जिनका पेटेंट एक्सपायर होता है Hmm. उनको रीलाइसेंस करा के फिर उसको अपना ब्रांडिंग करा के बेचते हैं. सो दैट इज नॉट एन इशू एनी मोर. प्लस Hmm. द गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ऐसी है कि वी Hmm. डू नॉट सब्सक्राइब टू फॉरेन फार्मा रूल्स और पेटेंट Hmm. इश्यूज. सो वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम. So Okay. rarely, जो one of the reasons why pharmaceuticals in India are still priced decently, they are Hmm. not as high as in the US or Europe. Okay. Next question है संतोष हेगड़े का. How do you CRM help a particular rep to improve his productivity? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. तो उसका जो उसके आपके पास एंड लेवल पे लोग हैं, क्या उनको कितना मोबाइल एक्सेस है उस सीआरएम का, और हाउ डू दे इम्प्रूव अपॉन द प्रोडक्टिविटी? मोबाइल एक भगवान की दी हुई देन है. उसमें हमने हाँ. रोज का रिपोर्टिंग का एक्सेस डाल के रखा है. तो वो जब भी अच्छा. कॉल करता है तो उसको बाय एट द एंड ऑफ द डे सारे कॉल्स के रिपोर्ट्स अब अपलोड करने होते हैं. और अच्छा. ये कोई रिटर्न वाला अपलोड नहीं है, उसको ड्रॉप डाउन और सिलेक्ट वाला है. वो अच्छा. ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते करते एक कॉल को वो 20 सेकंड में अपलोड कर देता है. उसके अगर दिन के 10 कॉल होते तो ही विल टेक 2 मिनट्स मैक्स. अच्छा. पूरे ओके. 10 कॉल वो दिन के अपलोड कर सकता है. उसको हम्म. सिर्फ नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए और उससे हम्म. वो अपलोड हो जाता है. हम्म. एक चीज है कि वी हैव एक्सेस टू दैट डेटा द नेक्स्ट डे. हम्म. ओके, वी डोंट हैव इट द सेम डे, दैट्स ऑल. क्योंकि वो अपलोड ओके. होके उसके ऊपर एनालिसिस. बट इट्स ओके, व्हिच इज नॉट बैड. तो एक चीज तो होगी कि प्रोडक्टिविटी, एक यहाँ पे दो टाइप की प्रोडक्टिविटी है. एक तो हो गया प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी. करेक्ट. दूसरा हो गया कि मैं एक रेप हूँ, मैंने कॉल्स की आज 10 कॉल्स की, ठीक है. अब मुझे क्या कैसे पता लगता है कि यार मेरी कॉल्स की कितनी अच्छी एफिशिएंसी आ रही है? उसको प्लस उसको एक्सेस है ना उसके
मोबाइल पे रिपोर्ट आती है उसके लेवल की। ओके, तो वो दो सारा तरीके की एनालिटिक्स रिपोर्ट उनके आती पास है। आता है। हाँ, दो तरह की रिपोर्ट आती है, एक आती है मोबाइल पे आती है, एक आती है एक्सेल में। ही हम्म। कैन गो, अगर फ्रंट लाइन के पास लैपटॉप नहीं है तो ही कैन गो टू अ नेट कैफे एंड एक्सेस दैट। बट ओके। हमने इतना आसान करके रखा है कि उसके मोबाइल पे भी उसको दिख जाएगा, प्लस उसके मैनेजर के पास भी जाती है, उसके मैनेजर के मैनेजर के पास भी जाती है। तो ऐसा हम्म। कोई इशू नहीं है, और हर एक को उसके लेवल का एक्सेस दिया गया है। हम्म। So he can see his own, his boss can see all the people reporting to him, his superior can see all the people reporting to him. क्या आपने कभी वॉइस कन्वर्सेशनल एनालिटिक्स के ऊपर इसमें कुछ सोचा है करने को? जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक डॉक्टर से, राइट? डू यू एनालाइज द कन्वर्सेशन ऑन ऑफन फ्रीक्वेंटली कि भाई कन्वर्सेशन आपकी कितनी इंप्रूव हो सकती है? उस लेवल पे आप एनालिटिक्स भी करते हो उसमें? नहीं किया है, and it is very interesting, though the thought had come to my mind, because that हम्म। is the only space that you are missing out, because we know हम्म। he has done a call, we know that he went there, या but only thing we बीच don't में know पता नहीं है क्या हुआ। बीच में करेक्ट। हुआ क्या। या So that is the बात क्या only हुई। thing. या। सो प्लस इससे ये होता कि अगर हम ये कर पाते तो हम हम्म। उसको नहीं, वो फोन में जब आप कॉल लगाते हो तो एक मैसेज आता है, दिस हम्म। कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग या। एंड क्वालिटी या। पर्पसेस। तो या। वो हम भी कहना शुरू कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं, हम्म। और नॉट मेनी डॉक्टर्स वुड लाइक दैट टू बी डन, हम्म। फ्रैंकली। तो राइट। राइट। उसके ऊपर अभी, मतलब ये इंडस्ट्री में तो कोई वॉइस नहीं है, दो यू एंड हम्म। मी वी आर टेकीज, सो प्रोबेबली वी अंडरस्टैंड, but I हम्म। don't think pharma companies would go for that. गॉट इट। अमित इज सेइंग आई एम फ्रॉम आईपी नीति फॉर हेल्प आउट। अच्छा, वो लीगल जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना पेटेंट के ऊपर, हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि आई एम फ्रॉम आईपी नीति एंड कैन हेल्प आउट। तो अमित, आप मतलब डेफिनेटली राहुल से ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा हो तो। आई एम श्योर राहुल वुड बी, मतलब सुन तो लेंगे ही आपकी बात के कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बातें बाद में आराम से कर सकते हैं ऑफलाइन आप। तो अगर किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। एक दो कुछ कुछ सेकंड्स ही और हैं, उसके बाद विल डिस्कनेक्ट। मीन टाइम राहुल, आपको कुछ कहना है तो थैंक यू सो मच, बाय द वे, सो मच फॉर oh, शेयरिंग सच इंटरेस्टिंग thank insights. you. Thank you. I hope it was a mutually beneficial discussion. I hope the crowd बिल्कुल, who is attending this enjoyed this. डेफिनेटली। इनफैक्ट बस जाने से पहले मेरे को एक आपसे रैपिड फायर राउंड लेना है। फटाफट से Right. कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको, बस दोनों में से चॉइस में से एक ही आंसर देना है। Right. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डू इट ऑल और गेट इट डन। Get it done. ओके। क्वांटिटी और क्वालिटी। Quality, always. ट्रेनिंग फ्रेशर्स और रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस पीपल। Training freshers. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। Initially hard work. ओके। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस। Office. 10 to 6 और फ्लेक्सिबल। Always been flexible. इनबाउंड या आउटबाउंड लीड। Outbound. ओके। इंसेंटिव और नो इंसेंटिव। Incentives. Makes life pleasurable. या। कोल्ड ईमेल और कोल्ड कॉलिंग। Cold calling. ओके। सेल्स या मार्केटिंग। Sales. Anytime. मनी एंड रिकॉग्निशन और प्रमोशन। At this stage of life, promotion. ओके। सचिन और धोनी। Sachin. ओके। आप मुझसे, लेकिन एक चीज है, मैं हैम्पर नहीं दे पाऊंगा आपको, मतलब करण जोहर की तरह। बट आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे, ऑन पॉइंट थे सारे, और फटाफट दिया आपने। चलो सो कभी थैंक यू मिलेंगे सो तो मच। कॉफी पियेंगे, आप कॉफी पिला देना जब भी जिंदगी में मिले। 100% sir, 100%। Whenever I am in your place or you are there in Delhi NCR या चंडीगढ़, एब्सोल्युटली, I love to एब्सोल्युटली, meet you in person। And एब्सोल्युटली। ठीक है, अब टाइम आ गया है आपसे विदा लेने का। Thank you so much थैंक यू सो once मच। again for joining, and thanks for being such a amazing, I would say, मेरे को वर्ड ही नहीं याद आ रहा, मैं वर्ड ही भूल गया, क्या बोलते हैं, अमेजिंग गेस्ट। या, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स अ लॉट। चलो हैव अ गुड बाय। डे। बाय बाय।